ٹائم مل جائے تو کبھی یوٹیوب پر جا کر کے اس صحابی کے بارے میں بھی سرچ کر لینا، یہ صحابی کون تھے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی، اتنے بڑے صحابی تھے، اتنے عظیم صحابی تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، ان کے جنازے کو جب اٹھایا جانے لگا، ان کا بدن بہت ہیوی تھا، ان کی باڈی بہت ہیوی تھی۔ جب جنازے کو اٹھایا جانے لگا، جنازہ بڑا ہلکا تھا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ان کا جنازہ تو بھاری ہونا چاہیے، ان کا جنازہ اتنا ہلکا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا ان لہو حملۃ غیرکم، اے میرے صحابہ، سعد ابن معاذ کے جنازے کو تم نے اکیلے نہیں اٹھایا ہے، فرشتوں نے بھی اٹھایا ہے۔ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے تھے، 70,000۔ میں صحیح حدیث سنا رہا ہوں الحمدللہ، ایسا نہیں کہ میں سیمانچل میں بیٹھا ہوں تو کچھ بھی بیان کر کے چلا، صحیح حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے سنا۔ سعد ابن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے تھے۔ ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش، ان کے انتقال پر اللہ تعالی کا عرش ہل گیا۔ وفتحت لہ ابواب السماء، ان کے مرنے پر آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے، آسمان والے خوش ہو گئے، بہت نیک انسان کی روح آ رہی ہے، بہت نیک انسان مرنے کے بعد آ رہا ہے۔ اور 70,000 لوگ ان کے جنازے میں شامل، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہوئے تھے۔ اتنے بڑے صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی۔ اب ذرا غور سے سننا جو بات میں بتانے جا رہا ہوں۔ سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی وہی قبر پر کھڑے۔ اچانک جب ان کو قبر میں اتارا گیا، اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا، آپ کے چہرے پر خوف کے اثرات آ گئے، ڈر اور بھے آپ کے چہرے پر نظر آنے لگا۔ آپ نے 3 مرتبہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر 3 مرتبہ آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کو سن کر کے صحابہ نے بھی بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، بلند آواز سے سبحان اللہ کہا، پورا قبرستان گونج اٹھا نبی اور صحابہ کی تکبیر کے کلمات سے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا بات؟ اچانک آپ کا چہرہ بدل گیا اور آپ تسبیح کے کلمات اور تکبیر کے کلمات پکارنے لگے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا تزایق علی صاحبکم ھذا القبر، اے میرے صحابہ تمہارے اس ساتھی کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی، قبر نے ان کو دبوچ لیا، قبر نے ان کو پکڑ لیا، اور میں نے اللہ سے دعا کی تب قبر نے ان کو چھوڑا۔ ان للقبر زقتتن، اے میرے صحابہ قبر سب کو دبوچتی ہے، قبر سب کو پکڑتی ہے۔ لو نجا منہ احد لنجا سعد بن معاذ، اگر قبر کے دبوچنے سے کوئی بچتا تو سعد بن معاذ بچ جاتے، مگر وہ بھی نہیں بچے۔ اس کا مطلب قبر سب کو دبوچے گی، قبر سب کو پکڑے گی۔ قبر کا عذاب سب کو نہیں ہوگا، مگر قبر دبوچنے کا جو کام کرے گی وہ سب کے ساتھ کرے، مجھے بھی دبوچے گی، آپ کو بھی دبوچے گی۔ مال و دولت کی دوڑ میں اندھا دھند بھاگنے والوں، دنیا میں ذرا سی مصیبت آ جائے تو اس سے بچنے کے لاکھوں انتظام کرتے ہو، کبھی قبر سے، قبر کے عذاب سے میرے پیارے ساتھی اپنے آپ کو بچانے کا بھی انتظام کرو۔ آج حالات یہ ہو چکے ہیں، مال و دولت کی محبت اس قدر ہمارے دل میں پیدا ہو چکی ہے کہ ہم حلال اور حرام بھول چکے ہیں، اور ہمیں نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، ایک ایسا زمانہ تم پر آئے گا جب لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے مال حلال طریقے سے کما رہے یا حرام طریقے سے۔ ہمارا نوجوان بزنس نہیں کرنا چاہتا، ہمارا نوجوان نوکری نہیں کرنا چاہتا، ہمارا نوجوان محنت مزدوری کرنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ڈریم 11 پر جوا کھیل کر کے پیسہ کما لے، وہ چاہتا ہے کہ IPL میں سٹا لگا کر کے پیسہ کما لے، وہ چاہتا ہے کہ اوزون نام کی کوئی کمپنی آ جائے، میٹا اوزون نام کی کوئی کمپنی آ جائے، کرپٹو کرنسی کے نام سے کوئی کمپنی آ جائے، اور بیٹھے بٹھائے پیسہ لگا کر کے بیٹھے بٹھائے راتوں رات امیر بن جائے۔ میرے نوجوانوں،
अपने आप को काहिल मत बनाओ, अपने दिमाग को और अपने जिस्म को मेहनत पर लगाओ। इसी मुल्क में रतन टाटा का भी इंतकाल हुआ। बहुत छोटी सी शुरुआत की थी रतन टाटा ने, और आज उनकी कंपनी का एक ब्रांड बन गया। सड़क पर मारुति की गाड़ी भी आती है, होंडा की गाड़ी भी आती है और टाटा की गाड़ी भी आती है। कभी आपने फर्क महसूस किया? टाटा की गाड़ी जब आती है, लोग कहते भाई साहब टाटा की कंपनी, टाटा की गाड़ी मजबूती में बेमिसाल होती है। मैं साउथ इंडिया में मैंने देखा कि लोग मारुति की गाड़ी नहीं खरीदते, फोर व्हीलर मारुति की बिल्कुल नहीं खरीदते। आंध्रा वगैरह में मैंने देखा। मुझसे लोगों ने कहा मौलाना कभी गाड़ी लेना टाटा की लेना, क्यों? बोले फैमिली के साथ आपको सफर करना है अगर हमेशा टाटा की गाड़ी लेना, क्योंकि टाटा की गाड़ी बहुत मजबूत होती है, बहुत परीक्षण होता है, बहुत जांच होती है, उसके बाद वो मार्केट में आती है। एक छोटी सी कंपनी खोली थी रतन टाटा ने, आज पूरे भारत का एक बड़ा ब्रांड बन गया। हम और आप भी ब्रांड बना सकते हैं मेरे साथी। हमारा भी कोई नौजवान अगर मेहनत और हिम्मत से काम ले, कल उसकी कंपनी का भी एक ब्रांड बन सकता है। और इस देश में हमने देखा मुकेश अंबानी, आज जिनके यहां शादी होती है तो करोड़ों खर्च करते हैं, उनके बेटे अनंत अंबानी की शादी होती है तो मीडिया में पूरा एक वावेला मच जाता है, साहब इतनी बड़ी शादी हो रही है। मुकेश अंबानी का बाप धीरू भाई अंबानी दुबई में लॉन्ड्री का काम करते थे। लॉन्ड्री का मतलब समझते हैं? होटल में आप जब जाते हैं, होटल के कमरे में आपका कपड़ा अगर धुलने के लायक होता है तो होटल वाले आपसे वो कपड़ा ले लेते हैं, कुछ चार्ज आपको देना पड़ता है और वो कपड़ा धुला जाता है। उस कपड़े की धुलाई का काम करते थे कौन? मुकेश अंबानी के जो बाप थे, जिनका नाम था धीरू भाई अंबानी। और उनके बाप ने फिर रिलायंस की कंपनी खोली थी और उनके बाप ने यह सपना देखा था, अपने बच्चों से कहा था मैं चाहता हूं कि भारत में मोबाइल इतना सस्ता हो जाए कि पोस्ट कार्ड से भी सस्ता। उस जमाने में जब उन्होंने धीरू भाई अंबानी ने ये बात कही थी, मोबाइल बहुत कम था इंडिया में और मोबाइल पर जब कोई कॉल करता था तो कॉल करने का भी पैसा बहुत ज्यादा लगता था और कॉल रिसीव करने का भी बहुत ज्यादा पैसा लगता था। और उस जमाने में पोस्ट कार्ड आता था 4 आने का, 25 पैसे का। तो किसी ने सोचा नहीं था कि धीरू भाई अंबानी का ये सपना भी पूरा होगा, लेकिन आज हो गया। आज तो आप रिचार्ज करा लेते हैं और अनलिमिटेड कॉल करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कारोबार करो, बिजनेस करो, हलाल तरीके से पैसा कमाओ। बहुत रास्ते हैं, ये सूद का धंधा न करो, ये ब्याज का धंधा न करो, ये हराम के रास्ते ना अपनाओ। मेरा रब कुरान में कहता है इन्नल्लज़ीना यअकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस। जो लोग सूद और ब्याज खाते हैं वो कयामत के दिन इस तरीके से उठेंगे जैसे शैतान किसी को छू करके पागल कर दे। शैतान किसी को छू करके पागल कर दे, उस तरीके का हाल किसका हो जाएगा? ब्याज खोर का हो जाएगा। अब सुन लो, मौलाना इसहाक साहब ने कहा था मौलाना आप सूद पर थोड़ा खुल करके बोलिएगा। अब कितना खुल करके बोला जाए मेरे साथ? सूद पर कितना खुल करके बोला जाए? ये सूद क्या है जरा इसको समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपया दिया, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं ब्याज का मतलब आपको। मैंने आपको 100 रुपया दिया और 100 रुपया मैंने आपको उधार दिया, कर्ज के तौर पे दिया, और मैंने ये कंडीशन लगा दी कि आप मुझे वापस 110 रुपया देंगे। किसी को उधार देने के बाद उस उधार पर प्रॉफिट अगर कोई लेता है तो वही सूद और ब्याज है। अगर मैंने आपको जमीन अपनी दे दी, जमीन मैंने आपको कर्ज के तौर पर दी और उसके बाद जब वापस मैंने आपसे जमीन ली तो कुछ पैसा भी मैंने ले लिया या कुछ खेती बाड़ी में भी मैंने ले ली। अगर अपने सामान चाहे अपने कर्ज के तौर पे दिया हो या पैसा दिया हो, उस कर्ज के ऊपर कोई प्रॉफिट अगर आप ले रहे हैं तो वही सूद और ब्याज है। बिल्कुल क्लियर समझ लो। जैसे मुंबई वगैरह में एक शक्ल है, लोग मकान को क्या करते हैं? हैवी डिपॉजिट पर देते हैं। हैवी हजरत मौलाना मनीरुद्दीन साहब बंगाल, डेरफटिया साहब अपने क्यामगाह से निकल चुके हैं, कुछ ही देर में डाइस की तशरीफ फरमा होंगे। मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि वो अभी घर ना जाए, जिसके इंतजार में बैठी हुई थी वो बस चंद लम्हों में स्टेज में तशरीफ फरमा होंगे।
मुंबई वगैरह में ये शक्ल राइज है कि लोग क्या करते हैं कि जमीन जो है हैवी डिपॉजिट पर देते हैं। मान लीजिए मेरे पास जमीन है, घर है, और आप मेरे पास आए, मौलाना साहब मैं आपका घर लेना चाहता हूं, रहना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम 1 लाख रुपया दे दो। अब 1 लाख रुपया आपसे मैंने ले लिया और घर आपको मैंने दे दिया, आप रह रहे हैं मेरे घर में। जितने दिन तक आपकी मर्जी आप मेरे घर में रह रहे हैं, और जब आप वापस जाने लगेंगे तो मैं वो हैवी डिपॉजिट जो आपने मुझे दिया था 1 लाख रुपया, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। ये बिल्कुल हराम है, ये सूद की एक शक्ल है, बिल्कुल क्लियर, इसको समझ लीजिए। चाहे खेती बाड़ी में आप ये काम करें, सामान में आप ये काम करें, जमीन में ये काम करें, अगर ये शक्ल है जिसमें कर्ज के ऊपर आप मुनाफा कमा रहे हैं तो ये ब्याज है, और ये कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह कुरान में कहता है फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुमने सूद ब्याज का लेन देन बंद नहीं किया तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। सूद और ब्याज का लेन देन अगर कोई बंद नहीं करता है तो समझ लो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करता है। और हाकिम की सही रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना लिर्रिबा सबउन व सित्तून बाबन, सूद के 70 से ज्यादा दरवाजे हैं। ऐसरुहा अय्यन की हर रजुल उम्महू, जिसमें सबसे हल्का दर्जा यह है कि इंसान अपनी सगी माँ से शादी कर ले, अपनी सगी माँ से निकाह कर ले, अपनी सगी माँ से ज़िना कर ले। अपनी सगी माँ से ज़िना करना यह सबसे हल्का दर्जा है सूद और ब्याज का। मेरे प्यारे साथियों, आज धड़ल्ले से मुसलमान सूद खा रहा है। इस सूद की लानत से मेरे प्यारे साथियों अपने घर को बचा लो। और याद रखो अल्लाह कुरान में क्या कहता है, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह सूद को मिटाता है, अल्लाह सदका खैरात में इजाफा करता है। आपने सूद के जरिए ऐसा लगता है कि आप पैसा कमा रहे हैं, माफ कीजिए आप पैसा कमा नहीं रहे बल्कि आप पैसा डुबा रहे हैं। आप अपने पैसे की बरकत को मिटा रहे हैं, आप अपने घर का सुकून मिटा रहे हैं, आप अपनी दुआओं का असर मिटा रहे हैं। जिस घर में हराम कमाई आएगी उस घर की दुआ भी कबूल नहीं। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्तजाबुद दावात थे, जब भी दुआ करते थे उनकी दुआ कबूल होती थी। किसी ने पूछा ऐ साद बिन अबी वक्कास, क्या राज है आपके इस दुआ के कबूल होने का? उन्होंने कहा मा रफ़अतु लुक़मतन, मैंने जब भी खाने के लिए कोई लुक़मा उठाया है मुझे मालूम होता है वो लुक़मा कहां से आया है, हलाल तरीके से आया है या हराम तरीके से आया है। मुझे अपनी कमाई का हिसाब मालूम होता है, मुझे अपने लुक़मे का हिसाब मालूम होता है। ये वजह थी हज़रत साद की दुआओं के कबूल होने की। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी दुआएं क्यों हमारे मुंह पर मारी जा रही हैं? क्यों आज हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारे जानो माल पर आज आफतें ही आफतें हैं, और हम इतनी दुआएं करें और हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कमाइयों के हराम होने की वजह से ऐसा हो रहा है? वो हदीस भी अपने सामने रखिए, सही मुस्लिम की वो हदीस जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ताला पाक है और पाक ही चीज को कबूल करता है। अल्लाह ने अपने रसूलों को भी इसी बात का हुक्म दिया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ मेरे रसूलों पाक और हलाल चीजें खाया करो। और अल्लाह ने ईमान वालों को भी यही हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, कुलू मिन तय्यिबात कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, ऐ ईमान वालों जो जमीन में हलाल चीजें हैं वो तुम खाओ। ईमान वालों को भी हलाल खाने का हुक्म दिया और रसूलों को भी हलाल खाने का हुक्म दिया। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं एक इंसान बड़ा लंबा सफर करके आता है, उसके बाल पारा गंदा हो जाते हैं, उसके कपड़े मैले कुचैले हो जाते हैं, और वो हाथ उठा उठा के दुआ करता है, या रब्बी, ऐ मेरे रब कह के दुआ करता है। वो मत अमू हराम, लेकिन उसका खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका लिबास हराम कमाई का। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ऐसे इंसान की दुआ कहां से कबूल? हमारे यहां हराम कमाई का एक तरीका और भी है, रिश्वत के जरिए पैसा कमाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरे की जमीन हड़प ली, दूसरे का खेत हड़प लिया, अदालत तक मामला गया, उन्होंने वकीलों को रिश्वत देकर के, पुलिस वालों को रिश्वत देकर के अपने हक में, अपने फेवर में फैसला कराया।
कान खोल करके सुन लो, रिश्वत के जरिए किसी का हक खाने वाला वो भी हराम खोर है। अल्लाह कुरान में कहता वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से न खाया करो। व तुदलू बिहा इलल हुक्काम, और अपने मामले को हाकिम के पास न लेके जाया करो। लिताकुलू फरीकम मिन अमवालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तालमून, जानबूझ करके दूसरों का माल नाजायज तरीके से खाने के लिए हाकिम के पास, अदालत के पास, जज के पास, वकील के पास अपने मामले को न लेके जाया करो। अल्लाह के नबी के पास भी लोग मसला लेकर के आते थे, आपने फरमाया इन्नमा अना बशर, मैं इंसान हूं। हो सकता है दो लोग मेरे पास अपना मामला लेकर के आए और एक आदमी बहुत चिकनी चुपड़ी बात करने वाला हो, उसकी बात में बड़ी मिठास हो और मैं उसके हक में, उसके फेवर में फैसला कर दूं। दो लोग मेरे पास कोई चीज लेकर के आए हैं, दो लोग मेरे पास कोई चीज लेकर के आए हैं और एक इंसान की बात में बड़ी चिकनी चुपड़ी बात है, बड़ा लहन है और बहुत अच्छे तरीके से वो बात करता है। हो सकता है मैं उसके हक में फैसला कर दूं। अगर मैं ऐसा करता हूं, क्या ऐलान करना है कुछ बच्ची का? ये स्टेज पर कोई बच्ची देखिए सामने है, रो रही है और पीले रंग का फ्रॉक पहने हुए, जिन भाई की बच्ची हो उसकी जो भी माँ है या बाप इस जलसे में आए हो ले जाए। बच्ची बहुत परेशान है, 2 घंटे से रो रही है। स्टेज पर मौजूद है, माँ और बाप जो भी होंगे यहां आके ले जाए उसको। तो अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे मेरे प्यारे साथी कि चिकनी चुपड़ी बात करने वाले की बात सुन करके अगर मैंने उसके फेवर में फैसला कर दिया और वो उसकी जमीन नहीं थी, उसका माल नहीं था, गलत फैसला मैंने अगर कर दिया, मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है, अगर मैंने ऐसा फैसला कर दिया है तो वो ये ना समझे कि मैं उसको जमीन दे रहा हूं। इन्नमा अक़तउ लहू क़ितातम मिनन नार, मैं उसको जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूं, मैं उसको जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूं। ओ लोगों, दूसरे की जमीन, दूसरे का खेत, दूसरे का माल नाजायज तरीके से अगर हड़प रहे हो, दुनिया में उस हक को दे दो, दुनिया में उसका हक दे दो, वरना जहन्नम का टुकड़ा लेना पड़ेगा कयामत के दिन। अल्लाह के नबी कह रहे हैं उसको जहन्नम का टुकड़ा दे। इतना खतरनाक मामला है मेरे प्यारे साथी। इसलिए हराम कमाई की जितनी शक्लें हैं, ये जुआ की भी बहुत सारी शक्लें चल रही हैं। और अभी तो मुझे बाज लोगों ने बताया कि कब्रिस्तान तक में लोग बैठ करके जुआ खेलते हैं। कब्रिस्तान जो इबरत की जगह है, मुर्दों के दफनाने की जगह है, वहां पर भी बैठ करके लोग जुआ खेलते हैं। दिल इतना कठोर हो चुका है, जुआ खेलने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, शराब पीने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, नशा करने के नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। याद रखो मेरे प्यारे साथी, नीतीश कुमार जी शराब पर पाबंदी लगाए या न लगाए, बिहार की गवर्नमेंट शराब पर पाबंदी लगाए या न लगाए, आपके इलाके की पुलिस शराब पर बैन लगाए या न लगाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह 1400 साल पहले शराब पर बैन लगा चुके हैं। मेरा रब कुरान में लगा चुका है और अल्लाह कुरान में आयत नाज़िल कर चुका है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ गंदी चीज है, शैतान का काम है, इनसे बचो तभी तुम कामयाब हो सकते हो। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर। जहां शराब आएगी, जहां जुआ आएगा, वहां लड़ाई होगी, वहां झगड़े होंगे। कितने मर्डर हो जाते हैं आज, कितने कत्ल हो जाते हैं इस शराब की वजह से और इस जुए की वजह से। भारत सरकार का डाटा बता रहा है, भारत सरकार की और रोड का जो मंत्रालय है, परिवहन मंत्रालय, वो बताता है कि भारत में रोड एक्सीडेंट्स की सबसे बड़ी वजह क्या है? नशा है, शराब है। इसीलिए आप किसी बड़े शहर में चले जाएं, दिल्ली में, मुंबई में, रात में अगर आप 4 व्हीलर पे निकलेंगे, कार पे निकलेंगे, बार बार पुलिस वाले चेक करते हैं कि कहीं ड्राइवर शराब
तो नहीं पी के आया है। कितने हादसे होते हैं शराब की वजह से। मेरे प्यारे साथियों, जिस चीज को इस्लाम ने हराम करार दे दिया है वो चीज हमारे लिए कभी भी फायदेमंद नहीं हो सकती है। ये शराब और ये जुआ हमारी कौम को बर्बाद कर रहा है। और अब तो शराब तो बहुत छोटी चीज हो गई मेरे साथियों, अब तो आपका नौजवान ड्रग्स ले रहा है, ऐसा ऐसा पाउडर इस्तेमाल कर रहा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। मुंबई के बाज इलाकों में मुझे भाइयों ने बताया, वहां एक पाउडर आता है, उसको एमडी बोलते हैं, बड़ा खतरनाक किस्म का नशा होता है। और जो नौजवान एक बार उस नशे का आदी हो जाता है फिर वो नशा छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और इतना खतरनाक वो नशा है कि पूरी बॉडी को, पूरी अकड़ियों को गला के खत्म कर देता है। हमारे नौजवान गुटखा खाते हैं। गुटखा, मैं ये नहीं कहता कि जो मसला शराब का है वही मसला गुटखा का है। शराब अपनी जगह है, गुटखा अपनी जगह है, मगर हराम तो गुटखा भी है ना। क्यों? इसलिए हराम है, तो गुटखा के अंदर अगर नशा न भी हो इसलिए ये हराम है, क्योंकि ये आपके शरीर को खोखला कर रहा है। जब उस गुटखे के पैकेट पर ये लिखा है कि टोबैको कॉजेस कैंसर, तंबाकू से कैंसर हो सकता है, जब गुटखा के ऊपर खुद सरकार ने लिखवाया है और गुटखा कंपनी ने लिखवाया है, और आप उस गुटखे को खा करके अपने आप को कैंसर के हवाले कर रहे हैं। माफ कीजिए, ये शरीर, ये जिस्म, ये अल्लाह ताला ने अमानत के तौर पे दिया है। इस शरीर को बर्बाद करने का हमें और आपको कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मेरे साथियों, मेरे नौजवान साथियों, गुटखे से भी अपने आप को दूर रखो, शराब वगैरह से भी दूर रखो, हर उस चीज से दूर रखो जो आपकी बॉडी और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला। और आगे बढ़िए, एक और चीज जो हमारे समाज को बर्बाद कर रही है बड़ी तेजी के साथ, मर्द और औरत के नाजायज ताल्लुकात, जिनाकारी और बदकारी समाज को बर्बाद कर रही है, रिश्तों की मर्यादा को बर्बाद कर रही है। हालात ये हो चुके हैं कि महरम रिश्ते, जिन रिश्तों से पर्दा नहीं करना है औरत को, यानी ससुर का रिश्ता, यानी भाई का रिश्ता, यानी बाप और बेटी का रिश्ता, भी आज बहुत सारे ऐसे हादसे हो रहे हैं कि इन रिश्तों में भी आज रिश्ते तार तार हो रहे हैं। इस कदर लोगों के दिमागों में गंदगियां भर दी गई हैं कि आज महरम रिश्तों के साथ भी ज्यादती हो रही है, 5-5 साल की बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है। ओ लोगों, याद रखो, सरकार कानून तो बना लेगी मगर कानून को जमीन पर लागू कौन करेगा? दिल्ली में चलती बस में जब एक लड़की के साथ रेप हुआ, पूरे भारत में बड़ा बवाल हुआ, मीडिया में बड़ा बवाल हुआ। निर्भया कांड आपको याद होगा। निर्भया कांड के बाद बहुत कानून सख्त किया गया, लेकिन आज भी जिना के वाकयात भारत की धरती पर हो रहे हैं। कलकत्ता की सरजमीन पर एक लेडी डॉक्टर के साथ बड़ी बेरहमी से न सिर्फ रेप किया गया, उसके जिस्म पर कितने हमले किए गए, उसके जिस्म पर कितने चाकू से हमले किए गए, और रेपी जब पकड़ा गया उसके चेहरे पर जर्रा बराबर भी अफसोस और नदामत नहीं था। वो लोगों, याद रखो, तुम कानून तो बना लोगे, तुम पुलिस का सिस्टम तो मजबूत कर लोगे, मगर दिल में अल्लाह का डर जब तक पैदा नहीं होगा ये क्राइम नहीं रुकेगा, ये अपराध नहीं रुकेगा। जब तक ये एहसास पैदा नहीं होगा, मालिक यौमिद्दीन, हमें उस अल्लाह को जवाब देना है जो हिसाब के दिन का मालिक है, जो बदले के दिन का मालिक है, और कयामत के दिन अपने हर करतूत का बदला हम सबको देना पड़ेगा। जब तक हमारे दिल में ये एहसास पैदा नहीं होगा तब तक ये अपराध रुकने वाले नहीं है, क्राइम रुकने वाले नहीं है। नबी की अदालत में एक आदमी आता है, नाम है माइस बिन मालिक असलमी, और वो आकर के कहता है, अल्लाह के नबी, मैंने जिना किया है, मैं शादीशुदा इंसान हूं, मैंने जिना किया है। अय अल्लाह के नबी, मुझे पता है जिनाकार की सजाए मौत है। अय अल्लाह के नबी, मुझे पत्थरों से मार मार के खत्म कर दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। नबी ने टाल दिया। नबी ने कहा, जाओ, पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो। नबी ने टालने की कोशिश की, वो फिर बार बार आकर के कहने लगे, अल्लाह के नबी, मुझे टालने की कोशिश न कीजिए, मुझे सजा दीजिए। आपने सहाबा से कहा, जरा इनके मुंह के पास जाके जरा सूंघ के देखो, कहीं शराब तो पी के नहीं आए हैं, कहीं नशे की हालत में तो नहीं है। सहाबा ने सूंघ के देखा, कहा, अल्लाह के नबी, नशे की हालत में नहीं है।
آپ نے اڑوس پڑوس سے پتہ لگوایا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے, دماغ تو صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے. صحابہ نے رپورٹ دی, ہاں اللہ کے نبی دماغ بالکل صحیح کام کر رہا ہے. جب ہر طریقے سے اطمینان ہو گیا, اللہ کے نبی نے دیکھا اب یہ خود آ کر کے اقرار کر رہے ہیں میں نے زنا کیا ہے, اور جو ہے کوئی دماغ بھی نہیں خراب ہے, کوئی نشہ بھی نہیں کیا ہے. آپ نے زمین میں گڈھا کھودنے کا حکم دیا, آدھا دھڑ ان کا زمین میں ڈالا گیا اور پتھروں سے مار مار کے ان کو ختم کیا گیا. جب پتھروں سے مارا جانے لگا, صحابی کو جب مارا جانے لگا, سزائے موت جب دی جانے لگی, تو غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اعتراض کیا تھا. جب ان کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی نے ان کی جنازے کی نماز پڑھانے کا ارادہ کیا آپ نے, تو حضرت عمر نے کہا کہ ایک زانی انسان کی آپ جنازے کی نماز پڑھائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر ابن خطاب, انہوں نے اتنی سچی توبہ کی ہے, اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں میں اس توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو 70 گنہگاروں کے لیے توبہ کافی ہو جائے گی. میرے بھائیوں, یہ توبہ کا احساس تب دل میں پیدا ہوتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. یہ زنا نہیں رکنے والا ہے, یہ اپرادھ نہیں رکنے والے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں تقریروں کے ذریعے کام نہیں بنے گا. اپنے بچوں کو بچپن سے اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا کرو, اپنے بچوں کو ایسی تربیت دو. آپ کی بیٹی جب گھر سے نکلے تو صرف یہ سوچ کر کے پردہ نہ کرے کہ میرے ماں نے کہا ہے, میرے باپ نے کہا ہے, وہ یہ سوچ کر کے پردہ کرے کہ میرے رب نے کہا ہے, میرے قرآن نے کہا ہے, میرے نبی نے کہا ہے. اور جب یہ سوچ کر کے وہ پردہ کر کے نکلے گی تو مسکان نام کی وہ لڑکی کرناٹک کی سرزمین پر جس کے نقاب پہن کر کے نکلنے پر اس کے سامنے بدتمیزی کی گئی اور اس نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی تھی, وہ ہماری بیٹی اور بہنیں میرے پیارے ساتھیوں تب پیدا ہوگی